Now let us solve, students, some numerical problems from Henry's law. Henry's law के numerical problems JEE नीट में भी पूछा जाता है, CBSE बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है. तो आपके लिए कुछ तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं हेनरीज लॉ से कर रही हूँ. आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे देखिए बताया, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर. मिलीमोल्स मतलब जैसे आपको पता है कि मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, उसी तरह से मिलीमोल, सेंटीमोल, डेसीमोल, मोल, उसके बाद डेकामोल, हेक्टामोल, किलोमोल आप कर सकते हो. सो मोल से मिलीमोल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा. जैसे आप ग्राम से मिलीग्राम में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, उसी तरह से मोल से मिलीमोल में जाने के लिए भी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो पहले तो हम देखें कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं. वी नो द फॉर्मूला PA is equal to KH into XA. Now here the solute is nitrogen. So we will write PN2 is equal to KH into XN2. Now see here KH value is given in kilobar and the partial pressure of nitrogen is given in bar. तो जो KH value है इसको किलो बार से हम बार में ले जाए. KH is equal to 76.48 किलो बार means 76.48 into 1000 bar. So how much it will be? It will be 76480 bar. इतना बार होगा. KH हो गया है. अभी PN2 हमें दे दिया गया है, तो 0.987 is equal to 76480 into XN2. XN2 क्या है? It is the mole fraction of nitrogen. So XN2 will be what? It will be 0.987 divided by 76480. So this comes out to be this much, 1.29 into 10 to the power minus 5. This is what is the value of mole fraction of nitrogen. Now how much water? It is 1 liter water. 1 liter water means 1000 milliliter water. So 1000 milliliter water, this is the volume of water. अब इसका मास चाहिए हमें. मास में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि वाटर का जो डेंसिटी है दैट इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर. सो वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मास ऑफ वाटर विल बी हाउ मच? मास ऑफ वाटर विल बी 1000 मिलीलीटर into 1 gram per milliliter. So it will be 1000 gram. And XN2 is equal to what? Number of moles of nitrogen divided by number of moles of nitrogen plus number of moles of water. But then mostly as the number of moles of nitrogen is very less as compared to number of moles of water, so water is present in large amount. So NN2 को जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में NN2 को जो है NH2 के कंपैरिजन में इग्नोर किया जाता है और इट इज टेकन एज NN2 divided by NH2O. So let's calculate the value of number of moles of water from here. NH2O will be how much? 1000 divided by molar mass of water that is 18 and so ये division में आएगा 55.5 moles. So just put the value. So XN2 we have got the value this. So we can write 1.9 into 10 to the power minus 5 is equal to NN2 divided by N water 55.5. So NN2 will be 1.29 into 10 to the power minus 5 into 55.5 and this gives us the value this much, 71.6 into 10 to the power minus 5 moles. Now you are to express the value of number of moles of nitrogen in millimoles. So moles में जो value हमें मिला उसको हम जो है ले जाएंगे millimole में by multiplying it with 1000. So NN2 will be equal to 71.6 into 10 to the power minus 5 multiplied by 10 to the power 3. So it will be 71.6 into 10 to the power minus 5 and 3.
it will be -2. So N2 will be equal to 0.716 millimole. So this is our answer. In this problem, students, let's see, they are saying that the Henry's law constant for the solubility of nitrogen in water at 298 Kelvin is this much, 10 to the power -5 atmosphere. Then they are saying the mole fraction of N2 in air, it is not in water. The mole fraction of N2 in air is 0.8. एयर में जो नाइट्रोजन है उसका मोल फ्रैक्शन 0.8 है. उसके बाद आपको बोला है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atmospheric pressure is, ये आपके ऑप्शंस है. तो 5 atmospheric pressure क्या है? इट इज द टोटल प्रेशर. ठीक है, टोटल प्रेशर 5 atmospheric pressure है. नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन एयर में 0.8 है. तो नाइट्रोजन का जो है पार्शियल प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. सो यहाँ पे सॉल्यूशन हमें कैसे करना है आप देखिए. पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एट 298 केल्विन इज Pn2 इज इक्वल टू xN2 इंटू टोटल प्रेशर P टोटल. आपको xN2 जो कि एयर में इसका मोल फ्रैक्शन है वो दे दिया 0.8 इंटू टोटल प्रेशर है 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो 5, सो इट विल बी 4 एटमॉस्फेयर. सो अभी हमें मिल गया है कि नाइट्रोजन जो कि वाटर में डिजॉल्व करेगा उसका पार्शियल प्रेशर कितना है. उसका पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए उसका मोल फ्रैक्शन जो एयर में है उसके साथ टोटल प्रेशर को हमने मल्टीप्लाई किया, तब आ गया है नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर जो वो एग्जर्ट कर रहा है ऑन वाटर. और हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, दैट ऑल्सो दे हैव टोल्ड यू, 10 मोल्स ऑफ वाटर. तो अभी हमें पार्शियल प्रेशर मिल गया. So now we will apply the Henry's law formula. Pn2 is equal to Kh into xN2. अब ये आएगा हमारा वाटर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन. ये था एयर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन, जिससे हमने क्या निकाला? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन which it is exerting on the solution. So see, अभी Pn2 का वैल्यू हमें मिल गया है 4. So it will be 4. Kh की वैल्यू है 10 to the power 5 into mole fraction of nitrogen. So mole fraction of nitrogen in the water, it is 4 divided by 10 to the power 5. So it is coming 4 into 10 to the power -5. This is the mole fraction of nitrogen in water. Now हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन which will dissolve in 10 moles of water. So xN2 हमें पता है कि xN2 means what? xN2 means nN2 divided by nN2 plus nH2O. nN2 को नीचे डिनोमिनेटर में हम इग्नोर करते हैं, फॉर्मूला हम ले लेते हैं nN2 divided by nH2O. तो xN2 is 4 into 10 to the power -5. So 4 into 10 to the power -5 is equal to nN2 divided by nH2O. तो आपको बता दिया 10 moles of water, so it is 10. So nN2 will be what? 4 into 10 to the power -5 into 10. So it will be 4 into 10 to the power -4. So this is the value of nN2. nN2 is equal to 4 into 10 to the power -4. ये हमारा वैल्यू आ गया. सो which ऑप्शन इज करेक्ट? 4 into 10 to the power -4, नंबर ए ऑप्शन इज करेक्ट. सी स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप हेनरीज लॉ का ये वाला फॉर्मूला लोगे PA इज इक्वल टू KH इंटू XA, तो नहीं होगा. क्योंकि आप देखिए KH का यूनिट क्या दिया हुआ है? मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर. दैट मीन्स जो KH है उसके लेफ्ट हैंड साइड में पार्शियल प्रेशर नहीं होना है. दैट मीन्स यहाँ पे होना है कॉन्सेंट्रेशन मीन्स सॉल्युबिलिटी. आपको पहले मैंने बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो? ग्राम पर लीटर में, मोल पर लीटर में, मोल फ्रैक्शन में. तो यहाँ पे KH का यूनिट मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर तब बैठेगा जब आप इस साइड में सॉल्युबिलिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन को रखोगे,
तो मास ऑफ द गैस जैसे हमने पढ़ाई है, पहला स्टेटमेंट जो हेनरी का था कि मास ऑफ द गैस मीन्स अमाउंट ऑफ द गैस dissolved in a given volume of the liquid is directly proportional to the pressure of the gas। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आपको दे दिया गया है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का, और आपको KH का यूनिट ये दे दिया गया है। सो द फॉर्मूला टू बी टेकन हियर इज S इज इक्वल टू KH इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे KH की जो यूनिट है वो मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर है, ना तो एटमॉस्फेयर है ना बार है, इट इज मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर। दैट मीन्स इस साइड में होगा मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। मास को आप मोल में अगर एक्सप्रेस करोगे तो ये हो गया मोल पर लीटर और ये आपका पार्शियल प्रेशर हो गया। तो जो सॉल्युबिलिटी है जो कि मोल पर लीटर में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है प्रेशर के साथ। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सो कंसंट्रेशन क्या आ रहा है, तब KH की वैल्यू है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.5। तो मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है 0.7 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर मीन्स मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें मिल गया है। तो मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन अगर हमें मिला है तो हम जो है क्या निकल सकते हैं, हम ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स जो कि वाटर में डिजॉल्व हुआ है वो नंबर ऑफ मोल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन एज 100 मिलीलीटर। सो हम लिखेंगे मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। सो मोलारिटी इज दिस मच, 0.7 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को हम NO2 लिख देते हैं डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का आपको जो है वॉल्यूम दे दिया गया है 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर को आपको लीटर में ले जाना है तो 1000 से डिवाइड करना है, वो 1000 आपको ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 100 और 1000 कैंसिल होकर के 10 रहता है। सो NO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 0.7 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 10। सो इट इज कमिंग 0.7 इंटू 10 टू द पावर -4 और इट कैन बी रिटन एज 7 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल। सो नंबर ऑफ मोल मिलने से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, आपको तो हाउ मच ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन का मास आपको पूछा गया है। सो मोल से ऑक्सीजन का मास निकालना जो है इजी है। सो NO2 is equal to 7 into 10 to the power -5 mole. So mass of oxygen will be how much? Number of mole को मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे मास आ जाएगा। So it will be 7 into 10 to the power -5 into 32 जो कि मोलर मास है ऑक्सीजन का। So it will come 224 into 10 to the power -5 ग्राम। तो आंसर में हमें जो है टैली करने के लिए हम इसको अगर मिलीग्राम में ले गए तो मिलीग्राम में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 टू द पावर 3 से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट विल बी 224 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट मीन्स 224 इंटू 10 टू द पावर -2 मिलीग्राम। तो -2 से डिवाइड कर दो, मतलब 100 से डिवाइड कर दो, इट विल बी 2.24 मिलीग्राम। सो ये आपका आ रहा है मास ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 2.24 मिलीग्राम मीन्स इट इज ऑप्शन नंबर डी। So I have tried to solve some numerical problems from Henry's law because my intention was that you should understand the concept। Henry's law का जो numerical problems है खास करके जो competitive exams है NEET और JEE में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। So 3 problems I have done for you and I hope you have learned many things from this video। So this is a humble request to you। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके नहीं जाना, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। समझो केमिस्ट्री डिटेल में, द लिंक ऑफ द चैनल विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and help it to grow. Thanks for watching the video.